Good afternoon, students. Today I have come with the second video of this chapter, that is economic reforms since 1991. In the first video, I explained the first portion of topic 1, the new economic reforms of 1991. And in that video, I told you that to cover all the concepts of this chapter, I have made 3 videos. In this video, I have covered the second portion of this topic. In first video, I have covered the first portion of this topic, new economic reforms of 1991, that is liberalization. In this video, I have covered next 2 portions of this topic, which are privatization and globalization. And in last video, I will cover these 2 topics together. Is this clear? So, in first video, I explained in detail. What I explained in detail? I explained liberalization in detail. Now, in this video, I'm going to cover the next 2 portions of this new economic reforms of 1991, and these are privatization and globalization. As I told you in first video that in year 1991, new economic reforms were introduced, and for these new economic reforms, 3 steps were taken by government of India. Liberalization, I have explained this thing in detail in the previous video. Now in this video, I am going to explain these 2, privatization and globalization. So here is the first topic of this video, that is privatization. Okay, and second topic of this video will be globalization. Okay, so firstly we'll try to understand the meaning of privatization. What is the meaning of privatization? Privatization means what? As we know that our country is a mixed economic system. So in our country there are 2 types of production units. Production units हमारे कंट्री की जो होती है, प्रोडक्शन यूनिट्स मीन्स फैक्ट्रीज, those units in which goods are manufactured or services are generated, these are known as production units. Means those units where goods and services are produced or generated, these are known as production units. So in our country there are 2 types of production units. Means in simple words, there are 2 types of organizations, or there are 2 types of factories in our country. First, public sector units, PSUs, and second, private sector units. Public sector units are owned by government. Public sector units के ओनर कौन होते हैं? गवर्नमेंट होते हैं. इनको सरकारी बोलते हैं, सरकारी. ओके. एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन यूनिट्स, इनके ओनर कौन होते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स इनके ओनर होते हैं. एक उदाहरण, जैसे आपने देखा होगा रिलायंस के पेट्रोल पंप. रिलायंस पेट्रोल पंप्स आर द एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स. और इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स किसके एग्जांपल हैं? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के. क्योंकि इंडियन ऑयल जो है, ये जो कंपनी है, इसको ओन कौन करती है? गवर्नमेंट. जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, नवरत्ना महारत्ना, तो मैंने बताया था वन ऑफ द महारत्ना इज़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, महारत्ना में आती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है. ऐसे बैंक्स को देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया. और ऐसे यदि आप देखें HDFC बैंक या ICICI बैंक, ये कौन से हो गए? ये प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए. इज दिस क्लियर? तो अब हमको ये समझना है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है. सो प्राइवेटाइजेशन मीन्स सिंपली, यदि कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है तो इसका ओनर कौन है? गवर्नमेंट है. यदि इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाती है फ्रॉम गवर्नमेंट टू एनी प्राइवेट इंडिविजुअल, तो ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र होगी? यदि किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेच दिया जाता है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को, तो अब ओनर पब्लिक सेक्टर यूनिट का कौन हो जाएगा? प्राइवेट इंडिविजुअल. तो पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या बन जाएगी? प्राइवेट सेक्टर यूनिट. तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन. Privatization is the process of
ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ अ पब्लिक सेक्टर यूनिट फ्रॉम गवर्नमेंट टू एनी प्राइवेट इन्वेस्टर। मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट कोई सरकारी कंपनी है, उसकी ओनरशिप मतलब उसका मालिक पहले गवर्नमेंट थी, अब उसका मालिक किसको बना दिया जाएगा, किसी प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर को। और मालिक कैसे बनाया जाएगा, जब उसको बेचा जाएगा। जैसे कोई घर है, उसका मालिक मैं हूँ और उसको मैंने बेच दिया किसी दूसरे इंडिविजुअल को, बी इंडिविजुअल को मैंने सेल कर दिया, तो अब उसका मालिक कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। तो जब किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी एसेट को बेचा जाता है तो उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। कहाँ से कहाँ, जो बेचता है उससे ट्रांसफ़र हो जाती है जो खरीदता है। तो प्राइवेटाइजेशन में बेचता कौन है, गवर्नमेंट। किसको, अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को। ओके। किसके हाथों में बेचता है, प्राइवेट सेक्टर के। तो ओनरशिप पब्लिक सेक्टर यूनिट की चली जाती है किसके पास, प्राइवेट सेक्टर के पास। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। इज इज क्लियर। प्राइवेटाइजेशन का मतलब, अब क्वेश्चन ये आएगा आपके मन में कि प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन क्यों लिया गया, वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेट सेक्टर को बेचने का निर्णय क्यों लिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था 1991 में एक प्रॉब्लम आई थी इकोनॉमिक क्राइसिस की। इकोनॉमिक क्राइसिस में एक प्रॉब्लम, जो फिफ्थ प्रॉब्लम मैंने एक्सप्लेन करी थी, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। मेनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स स्टार्टेड परफॉर्मिंग पुअरली, मैंने बताया था। और इसका कारण ये था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन उनको नहीं मिलता था। किससे, प्राइवेट सेक्टर से। क्यों, बिकॉज 17 इंडस्ट्रीज वेयर कम्प्लीटली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। तो ये 17 जो इंडस्ट्रीज़ थी, इनमें फैक्ट्री लगाने का अधिकार केवल किसके पास था, का राइट केवल किसके पास था, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर के पास। तो जो भी यूनिट्स बनती थी उसको स्टैब्लिश कौन करता था, गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इन्वेस्टर्स अपनी फैक्ट्रीज में नहीं लगा पाते थे। तो ये जो सरकारी कंपनियां होती थी, इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता था। यदि प्राइवेट सेक्टर भी अलाउड रहता तो उनका कॉम्पिटिटर होता है। और जब कॉम्पिटिशन होता है तो अपने आप अपनी परफॉर्मेंस को आपको क्या करना पड़ता है, बेटर करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग पुअरली। तो जब कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स नहीं बट मेनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स स्टार्टेड परफॉर्मिंग पुअरली, मतलब स्टार्टेड परफॉर्मिंग पुअरली मीन्स दे वेंट इन लॉस, वो लॉस में चली गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके ऑपरेशन पे, उन फैक्ट्रीज़ को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को चलाने पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर रही थी, बट इन प्रोडक्शन यूनिट से कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, बल्कि लॉस हो रहा था। तो ये गवर्नमेंट पे एक तरह से क्या हो गया था, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो लॉस वाली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, वो गवर्नमेंट पे एक तरह से क्या हो गई थी, बर्डन, बोझ हो गई थी। क्योंकि इससे गवर्नमेंट को कोई भी इनकम नहीं हो रही थी। एंड ऑन द अदर हैंड, टू रन दिस public sector units, government of India had to spend huge amount of money. तो government of India decided to reduce its burden. government of India ने सोचा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को यदि प्राइवेट सेक्टर के हाथों बेच दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट, ये लॉस बियरिंग जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो किसके हाथों में चली जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर के। तो गवर्नमेंट का बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सेकेंड, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ फिजिकल डेफिसिट। मैंने ये भी आपको बताया था कि 1991 एक प्रॉब्लम हो गई थी गवर्नमेंट के पास, हाई लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया था। और डेफिसिट यदि बहुत ज़्यादा है, यदि डेफिसिट को कम करना है तो फिर क्या करना होता है, गवर्नमेंट को दो काम करने होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, यदि गवर्नमेंट की इनकम से ज़्यादा हो तो ही डेफिसिट होगा। ओके। तो मैंने आपको बताया था ये डेफिसिट कम करने का तरीका क्या है, या तो एक्सपेंडिचर को कम कर दीजिए या अपनी इनकम को बढ़ाइए। यदि आपके पास घाटा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि यदि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो लॉस में है उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाए, जिससे कि प्राइवेटाइजेशन होगा, तो इनको बेचने से एक तरफ तो गवर्नमेंट का बर्डन कम हो जाएगा और दूसरा गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी। बेचने से जो भी अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम होगी, और इस तरह से गवर्नमेंट की इनकम क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और इस तरह से एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच का गैप क्या हो जाएगा, कम। तो फिजिकल डेफिसिट का अमाउंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब डेफिसिट कम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरी इनकम 100 रुपीज़ है और मैं एक्सपेंडिचर 150 रुपीज़ करना चाहता हूँ, तो इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप कितना है, 50 रुपीज़। इस गैप को भरने का तरीका क्या हो सकता है,
मेरे पास यदि कोई एसेट है, एसेट ओके, उसे यदि मैं बेचता हूँ, क्योंकि मेरे पास डेफिसिट कितने का, 50 रुपीज़ का, तो एसेट को यदि मैं बेच देता हूँ 50 रुपीज़ में, तो अब मेरे पास पहले से 100 था, 50 और आ जाएगा, तो टोटल इनकम मेरी कितनी हो जाएगी, 150। ओके, और एक्सपेंडिचर मैं कितना कर रहा हूँ, 150। तो अब इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का गैप कितना हो गया, ज़ीरो। पहले गैप कितना था, 50, तो 50 से ज़ीरो हो गया कब, जब मैंने क्या करा, अपनी प्रोडक्शन यूनिट को बेच दी, अपनी एसेट को मैंने बेच दिया। तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डिसाइड करा टू सेल आउट इट्स लॉस बेयरिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। इससे दो फायदे होते, पहला रिडक्शन इन द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट, रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट, ये दो ऑब्जेक्टिव्स थे प्राइवेटाइजेशन के। इज दिस क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि प्राइवेटाइजेशन कैसे हुआ। प्राइवेटाइजेशन करना इतना आसान भी नहीं था, मतलब ये ऐसे थोड़ा ना होगा कि गवर्नमेंट बोल देगी कि आज से प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ स्टेप्स लेने थे। फॉर द प्राइवेटाइजेशन सम स्टेप्स वेर रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय गवर्नमेंट। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना था, इसको समझने के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि 17 इंडस्ट्रीज वेयर कंप्लीटली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकारी, मतलब 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो सरकारी थी, या जो भी सरकारी या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी वो किस में इस्टेब्लिश हो रही थी, 17 इंडस्ट्रीज़ में। क्योंकि आपको याद होगा मैंने इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 में आपको बताया था कि 3 शेड्यूल बनाए गए थे इन दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। 3 शेड्यूल्स वेर मेड बाय गवर्नमेंट। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज़ रखी गई, ओके, और शेड्यूल बी में कितनी रखी गई, 12, और शेड्यूल सी में रिमेनिंग इंडस्ट्रीज़ रखी गई। अब ये शेड्यूल ए कौन सी थी, ये ऐसा शेड्यूल था जो पूरी तरह से रिजर्व था, किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए। मतलब शेड्यूल ए में जो 17 इंडस्ट्रीज़ थी, इसमें फैक्ट्री या प्रोडक्शन यूनिट सेट नहीं कर सकता था, कौन, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन दीज 17 इंडस्ट्रीज़, ओके। तो जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लगी वो किस में लगी, इन 17 इंडस्ट्रीज़ में लगी। बट इन दीज 17 इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड। बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना था, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचना था, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। बट प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन दीज 17 इंडस्ट्रीज। ऑल द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वे आर वर्किंग इन दीज 17 इंडस्ट्रीज, ओके, and in these 17 industries this private sector was not allowed. But now government of India wanted to sell out these public sector units to private sector, means ये 17 इंडस्ट्रीज जो थी इनमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स काम कर रही थी, अब इनको प्राइवेट सेक्टर को देना था, लेकिन इन 17 में तो प्राइवेट सेक्टर अलाउड ही नहीं था। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले क्या डिसीजन लेना था कि अपना जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें चेंज करना, कि इन इंडस्ट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया जाए। मतलब जो 17 इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी उनका क्या करना, डी रिजर्वेशन करना। बिकॉज नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू sell out the public sector units to private sector, but the industries in which public sector was working in these private sector was not allowed, okay. That is why it was not possible for private sector to purchase these production units of government or public sector, but government of India wanted to sell out. That is why firstly government of India decided to do the de-reservation. डी रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, डी रिजर्वेशन का मतलब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, उस रिजर्वेशन को क्या करना, ख़त्म कर देना, उस रिजर्वेशन को अबॉलिश कर देना, रिमूव कर देना, और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ओपन करना, किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो 1991 में all the 17 industries were not open for private sector, but out of 17 9 industries were open, okay. 8 को अभी भी पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखा गया, 9 को ओपन कर दिया गया।
और इन 9 इंडस्ट्रीज़ में जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया। और एट प्रेजेंट क्या हो गया है, आउट ऑफ 17, 15 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैव बीन 15 industries out of these 17 have been open. Only 2 at present are reserved for public sector. अभी आज के डेट में पब्लिक सेक्टर के लिए केवल 2 इंडस्ट्रीज रिजर्व हैं। 1956 में 17 रिजर्व थी, 1991 में आउट ऑफ दिस 17 9 वेर ओपन एंड एट प्रेजेंट ओनली 2 आर रिजर्व। ऑल रिमेनिंग 15 हैव बीन ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। कौन कौन से रिजर्व्ड हैं, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट। इन 2 इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन यूनिट्स जो भी काम कर रही हैं सब केवल पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हैं, और इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बेच नहीं सकती, या इन इंडस्ट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर अपनी नई प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं लगा सकता। तो फर्स्ट स्टेप क्या लिया गया, डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, किसके लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए। इज दिस क्लियर। एक और स्टेप लिया गया, दैट स्टेप वाज डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब मैं पहले आपको समझा दूँ, तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। सपोज ये एक प्रोडक्शन यूनिट है, कौन सी प्रोडक्शन यूनिट, पब्लिक सेक्टर यूनिट। सपोज ए इज पब्लिक सेक्टर यूनिट, ओके, and total amount of money which has been invested by government in the establishment of this production unit is suppose rupees 100 crore। गवर्नमेंट टोटल पैसा कितना खर्च किया है, 100 करोड़। तो गवर्नमेंट इसकी ओनर है, ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। अब सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, एक बी इंडिविजुअल है, ऑब्वियसली ये बी इंडिविजुअल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइवेट को, प्राइवेट सेक्टर को बी इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 100 करोड़ ओनरशिप कितनी है गवर्नमेंट के पास, 100% ओनरशिप है। तो 100% ओनरशिप की वैल्यू कितनी है, 100 करोड़। तो 1% ओनरशिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 करोड़। ओके, तो सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1% शेयर इस प्रोडक्शन यूनिट का, मतलब 100% शेयर किसके पास है, ओनरशिप में गवर्नमेंट का शेयर कितना, 100%। तो टोटल शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। अब सपोज शेयर मार्केट में गवर्नमेंट 1% शेयर इस प्रोडक्शन यूनिट का बेचती है, और बी ने इसको परचेज कर लिया, कितना परसेंट शेयर, 1%। तो अब गवर्नमेंट के पास कितना शेयर बचा, 99%, और इसके पास कितना शेयर हो गया, 1%। इज दिस क्लियर। तो ये जो 1% शेयर गवर्नमेंट ने बेचा है, इसी जो शेयर बेचने का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स द सेलिंग ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट टू प्राइवेट सेक्टर बाय गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट या कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसका कुछ परसेंटेज शेयर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को बेचा जाता है, तो इसको बोला जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने शेयर बेचा और बी ने शेयर खरीदा, तो बी के लिए क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। यदि किसी प्रोडक्शन यूनिट में हम शेयर खरीदते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, और जो शेयर बेचता है या जो ओनर होता है उस प्रोडक्शन यूनिट का, जो शेयर बेचता है वो क्या करता है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इज सेलिंग द 1% शेयर टू बी, सो फॉर गवर्नमेंट इट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो भी हम डिसइन्वेस्टमेंट डिफाइन करेंगे वो गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। प्राइवेट सेक्टर बी ने जो खरीदा है उसके लिए क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। तो सेलिंग ऑफ शेयर डिसइन्वेस्टमेंट, परचेजिंग ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट। ओके, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज परचेजिंग ऑफ शेयर, और इसी का उल्टा सेलिंग ऑफ शेयर। ओके, तो अब गवर्नमेंट कितना ओनर रह गया, 1%। 1% शेयर, यदि किसी भी प्रोडक्शन यूनिट का 2% आप शेयर खरीद लिए, मतलब उसके ओनरशिप में आपका शेयर कितना हो गया, 2%। ओके, और जिसने शेयर बेचा उसकी ओनरशिप में शेयर कितना रहेगा, 98%। तो अभी भी ओनर कौन रहेगा, वही व्यक्ति रहेगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा शेयर है। तो अभी भी इस प्रोडक्शन यूनिट का ओनर कौन है, गवर्नमेंट है। ओके, तो डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने करा। अब सपोज गवर्नमेंट ने
40% शेयर इसको बेच दिया 40 करोड़ में, 1% शेयर 1 करोड़ में, तो 40% शेयर सपोज गवर्नमेंट ने इसको बेच दिया। नाउ गवर्नमेंट इज सपोज सेलिंग दिस टाइम 40% शेयर, कितने में, 40 करोड़ में। तो अब गवर्नमेंट के पास कितना शेयर बचा, 60%, और बी इंडिविजुअल के पास कितना शेयर चला गया, 40%। तो गवर्नमेंट ने कितना डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, जितना शेयर बेचा 40%। ओके, दिस इज ऑल्सो डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन इस डिसइन्वेस्टमेंट के बाद अभी भी ओनर कौन है इस प्रोडक्शन यूनिट का, गवर्नमेंट। अभी भी ये पब्लिक सेक्टर यूनिट बनी हुई है क्योंकि गवर्नमेंट के पास शेयर ज़्यादा है। ओके, सपोज गवर्नमेंट ने 50% शेयर बेच दिया, 50% शेयर कितने में, 50 करोड़ में। तो अब इसका ओनर कौन बन गया, अब गवर्नमेंट के पास शेयर कितना हो गया, 50%, और इसके पास कितना रह गया, 50%। तो डिसइन्वेस्टमेंट ये हुआ। ओके, अभी भी ओनरशिप किसके पास है, 50% गवर्नमेंट के पास, 50% प्राइवेट इंडिविजुअल के पास। तो अभी भी ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं हुआ क्योंकि अब दोनों ओनर बन गए 50-50% के ओनर, ये ज्वाइंट वेंचर हो गया। ओके, तो अभी भी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास भी है और बी इंडिविजुअल के पास भी है। नेक्स्ट, सपोज गवर्नमेंट इज सेलिंग 51% शेयर इन 50 करोड़, 51 करोड़ टू बी। तो अब गवर्नमेंट के पास कितना बचा, 49%, और इसके पास कितना चला गया, 51%। इज दिस क्लियर। तो अब गवर्नमेंट ने कितना डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, 51%। ओके, तो अब ओनर कौन बन गया, अब बी इंडिविजुअल बन गया। अब ये पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं रह गई, अब ये क्या बन गई, प्राइवेट सेक्टर। अब ये क्या बन गई, प्राइवेट सेक्टर यूनिट। इज दिस क्लियर। तो अब ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, प्राइवेटाइजेशन। इज दिस क्लियर। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेटाइजेशन के लिए कम से कम कितना शेयर गवर्नमेंट को बेचना पड़ेगा प्रोडक्शन यूनिट का, 51% या उससे ज़्यादा। यदि गवर्नमेंट 51% से कम शेयर बेचती है तो प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाएगा। इज दिस क्लियर। अब एक और उदाहरण से आपको मैं समझाता हूँ, थोड़ा इसको क्लियर करना ज़रूरी है। सपोज गवर्नमेंट ने 20% शेयर अपना बेच दिया, तो गवर्नमेंट के पास कितना बचा, 80%, और प्राइवेट सेक्टर के पास कितना आ गया, 20%। तो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट है, यस, सेलिंग ऑफ शेयर, क्योंकि गवर्नमेंट ने शेयर 20% बेच दिया। इज दिस प्राइवेटाइजेशन, नो, प्राइवेटाइजेशन नहीं है क्योंकि अभी भी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, अभी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट पब्लिक सेक्टर ही बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट डज नॉट मीन प्राइवेटाइजेशन नेसेसरली। ओके, बट फॉर प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के लिए कितना % डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कम से कम गवर्नमेंट को कितना बेचना पड़ेगा, 51%। ओके, यदि 51% गवर्नमेंट ने बेच दिया तो अब गवर्नमेंट के पास कितना बचेगा, 49% शेयर, और प्राइवेट सेक्टर के पास कितना चलेगा, चला जाएगा 51%। तो अब ओनरशिप का ट्रांसफ़र होगा। तो ओनरशिप का ट्रांसफ़र पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर कब होता है, जब डिसइन्वेस्टमेंट कितना किया जाता है, कम से कम 51%। 51% से ज़्यादा कर दीजिए तब तो और ही अच्छा हो गया। यदि गवर्नमेंट ने सपोज 70% शेयर बेच दिया तो गवर्नमेंट के पास 30%, प्राइवेट सेक्टर के पास 70%, तो दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो। लेकिन गवर्नमेंट ने केवल सपोज 3% शेयर बेचा तो गवर्नमेंट के पास कितना बचा, 93%। सो दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट, कितना %, 3%, बट दिस इज नॉट प्राइवेटाइजेशन। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी फॉर प्राइवेटाइजेशन। पहला स्टेप क्या ज़रूरी था प्राइवेटाइजेशन के लिए, जो मैंने आपको बताया था। प्राइवेटाइजेशन के लिए 2 स्टेप्स लिए गए थे। फर्स्ट स्टेप विच वॉज टेकन बाई गवर्नमेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन वॉज डी रिजर्वेशन। वाई, so that private sector could be allowed in those industries in which public sector was working, because previously these industries were completely reserved for public sector. Okay, दूसरा स्टेप क्या लिया गया for this? Second step was disinvestment in public sector units. disinvestment का मतलब क्या होता है, selling of share of PSU। ओके, लेकिन ये जो शेयर बेच रहे हैं, यदि ये 50%, 51% से कम शेयर बेच रहे हैं
तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। गवर्नमेंट को कितना बेचना पड़ेगा? मोर देन 51% शेयर। इसीलिए एक स्टेटमेंट कभी कभी पूछा जाता है कि एवरी डिसइन्वेस्टमेंट इज प्राइवेटाइजेशन, डू यू एग्री विद दिस? तो आप लिखेंगे नो, आई एम नॉट एग्री विद दिस, बिकॉज every disinvestment is not privatization. Only that disinvestment in which more than 51% share is sold is privatization. लेकिन पूछा जाएगा every privatization is disinvestment, do you agree? तो आप बोलेंगे yes, every privatization is disinvestment because privatization means transferring the ownership of public sector to private sector. In that, more than 51% share of public sector unit will have to be sold, and selling of share of public sector unit, whatever it is, whether it is 2%, 7%, 51%, 80%, is disinvestment. That is why every privatization is disinvestment, but every disinvestment is not the privatization. Okay, now we'll see that the disinvestment means we'll see the definition of disinvestment. Disinvestment means selling of share of public sector units to private sector by government. 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड करा? डिसइन्वेस्टमेंट करने का। कौन सी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का? दोज विच वेयर इन लॉस। क्यों? मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था, सो दैट गवर्नमेंट कुड रिड्यूस इट्स फाइनेंशियल बर्डन। अब जब डिसइन्वेस्टमेंट से ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट के पास आने लगा, तो प्रॉब्लम ये हो गई कि कहाँ पे इसको रखा जाए, इस अमाउंट ऑफ मनी को कहाँ पे इसको रखा जाए, कैसे इसकी रिकॉर्ड कीपिंग करी जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 ईयर में नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड एक बनाया, एक अपना अकाउंट बनाया, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। जो भी एनी अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया from the disinvestment of any public sector unit, that is deposited in that, दिया है ना, in which the amount of money received by government from disinvestment is deposited in national investment fund. ओके, और जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड होता है, इसका 75% यूज़ किया जाता है हेल्थ और एजुकेशन के डेवलपमेंट में, और जो रिमेनिंग 25% होता है वो इन्वेस्ट किया जाता है किस में? ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो प्रॉफिट में है, ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके, यूज़ किया जा सकता है, यूज़ किया जाता है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि डिसइन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में कितने टाइप के हुए हैं, या कितने मेथड्स यूज़ किए गए हैं डिसइन्वेस्टमेंट के? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो शेयर बेचे जाते हैं, किस लिए? प्राइवेटाइजेशन के लिए जो शेयर बेचे जाते हैं, उसके लिए दो मेथड्स यूज़ किए गए हैं, माइनॉरिटी सेल एंड स्ट्रैटेजिक सेल। सेल किसका? शेयर का। माइनॉरिटी सेल में क्या किया जाता है? अंडर दिस, जो माइनॉरिटी सेल होता है, गवर्नमेंट केवल 49% तक शेयर बेचती है। तो 49% जब शेयर बेच देती है, तो गवर्नमेंट के पास कितना शेयर अभी बचा रहता है? 51%, या 51% गवर्नमेंट के पास बचा रहता है, या 51% से ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम कितना परसेंट शेयर बेचना है? 49%। तो 49% यदि मैक्सिमम शेयर भी बेचा जाएगा, तो अभी भी 51% ओनरशिप किसके पास रहेगी? गवर्नमेंट के पास। इसीलिए अंडर दिस ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट रिमेन्स विद गवर्नमेंट, ओनरशिप अभी भी गवर्नमेंट के पास रहती है। मतलब इससे माइनॉरिटी सेल से जब डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो अभी प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है। ओके, एंड इट इज़ डन थ्रू पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर मतलब इसमें जो शेयर बेचे जाते हैं, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट में आम पब्लिक के लिए इसको निकाला जाता है, आम इंडिविजुअल्स के लिए या कॉमन मैन के लिए। कॉमन मैन हम आप भी खरीद सकते हैं, शेयर खरीदते हैं ना, SBI का शेयर खरीदते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो भी शेयर रहते हैं, UBI के शेयर हम खरीदते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के किसी भी जो भी नवरत्ना है, महारत्ना है, मिनी रत्ना है, सबके कुछ ना कुछ शेयर बेच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेच रखे हैं। कहीं 2%, कहीं 7%, कुछ में 8%। लेकिन इन सारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इनका कितना मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट ने बेचा होगा? मैक्सिमम केवल 49%, क्योंकि 49% से ज़्यादा यदि गवर्नमेंट बेच देगी, तब तो क्या बन जाएंगे? प्राइवेट सेक्टर। तो ये पब्लिक सेक्टर बने हुए हैं, और ऐसी कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं है जिसमें शेयर एट प्रेजेंट गवर्नमेंट का 100% हो। कुछ न कुछ शेयर गवर्नमेंट ज़रूर बेचा है इनकम जनरेट करने के लिए, 2%, 7, 8, 10, 12, 18, 19, लेकिन कितना बेचा है? मैक्सिमम 49% तक। तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग द टाइप। तो पहला मैंने आपको बताया माइनॉरिटी सेल, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैक्सिमम शेयर कितना बेचा जाता है? 49%। इसीलिए गवर्नमेंट ओनर बनी रहती है, और मतलब इससे प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है, और
कॉमन मैन को इससे बेचा जाता है पब्लिक ऑफर के थ्रू शेयर मार्केट में। दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक सेल, इसमें ऑब्वियसली यहाँ 49% मैक्सिमम, इसमें मिनिमम कितना बेचा जाता है 51%। कम से कम गवर्नमेंट कितना बेचती है 51%। तो अब गवर्नमेंट के पास कितना बचता है 49% या इससे कम। मान लीजिए 51% बेचा, कम से कम 51 बेचना है तो 49 बचेगा। उसके बाद 60% बेचा गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट के पास 40 बचेगा। यदि 70% बेचा तो 30 बचेगा, 75% बेचा तो 25। तो हर बार 51% से कम गवर्नमेंट के पास शेयर बचेगा। इसीलिए ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी किधर से किधर, फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। इसीलिए स्ट्रैटेजिक सेल्स जब डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इससे क्या हो जाता है, प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। अंडर इट ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर एंड इट इज़ डन थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग। इसमें क्या किया जाता है, बिडिंग करी जाती है, ऑक्शन करा जाता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोज प्राइवेटाइजेशन के लिए 60% शेयर का दाम 100 करोड़ रखा, 100 करोड़ रुपीज़ रखा, RS 100 करोड़, तो 100 करोड़ में नहीं बेचा जाएगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे और इसकी बोली लगाएंगे, होता है ना, स्टार्ट होगा 100 करोड़ से, ऑक्शन स्टार्ट होगा। तो कोई बोलेगा 150 करोड़ में मैं खरीदूंगा, तो फिर कोई और बोलेगा जो खरीदना चाहता है इंटरेस्टेड 160। तो जो मैक्सिमम रेट लगाएगा उसको बेच दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव बिडिंग। बिडिंग मतलब ऑक्शन से, ऑक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू देने के लिए तैयार होगा शेयर की उसको बेचा जाएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक सेल। इज दिस क्लियर नाउ? अब प्राइवेटाइजेशन के बारे में ये भी पूछा जाएगा आपको कि क्रिटिसिज्म करा जाता है, द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड इन अ कंट्री और वर्ल्ड वाइड। इंडिया में जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है उसे क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि कहा गया था स्टार्टिंग में, मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू डू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ ओनली दोज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स विच वेर इन लॉस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि केवल ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, मतलब ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर के हाथों बेची जाएंगी जो किस में रहती हैं, लॉस में। लेकिन यदि हिस्ट्री हम देखें, इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री सिंस 1991 के बाद की हिस्ट्री देखें तो बहुत सारी प्रॉफिट वाली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का भी प्राइवेटाइजेशन किया गया, उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथों बेच दिया गया है। तो इसका क्रिटिसिज्म करा जाता है। दूसरा, जब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचा जाता है प्राइवेट सेक्टर के हाथों तो उनको डीवैल्यू करके बेचा जाता है, क्योंकि हमारे कंट्री में करप्शन है। कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ओके, पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो यदि उसको बेचना है, पब्लिक सेक्टर यूनिट मान लीजिए गवर्नमेंट की है, उसका प्राइवेटाइजेशन करना है पब्लिक सेक्टर यूनिट का, ओके, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिस भी मिनिस्ट्री की पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है उसके ऑफिसर्स उसका वैल्यूएशन करते हैं। तो होता ये है कि यदि एक्चुअल प्राइस उसका 100 करोड़ रुपीज़ है तो वो लोग उसको कम वैल्यू दिखाते हैं, 20 करोड़, 30 करोड़। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को इनको खरीदना होता है वो इनको ब्राइब दे देते हैं, घूस दे देते हैं। किसको? जिन ऑफिसर्स को इनकी वैल्यू लगानी होती है। तो 100 करोड़ की वैल्यू वो लगा देंगे 20 करोड़, तो 20 करोड़ में बिकेगी ये पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है पहले उसको कि यदि एक्चुअल वैल्यू पे बिकती तो उसको 100 करोड़ देना पड़ता, अब उसे कितना देना पड़ेगा 20 करोड़। तो कितना सेव कर लिया वो 80 करोड़। इसमें से 5, 7, 8, 9, 10 जितना भी मांगेगा ऑफिसर उतना उसको ब्राइब दे देगा। और इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लॉस कितने का हो गया 80 करोड़। मतलब टोटल 100 करोड़ मिल सकता था लेकिन मिलेगा केवल कितना 80 करोड़। और इससे लाभ किसको हुआ? जो ऑफिसर है उसने ब्राइब ले लिया 8-10 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ रुपीज़, 80 करोड़ रुपीज़। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट इसको 100 करोड़ में मिलती, 100 करोड़ खड़ा होता, 20 करोड़ प्लस सपोज 8 करोड़ रुपए उसको देना पड़ा घूस, तो टोटल केवल कितना देना पड़ा 80 करोड़। तो 100 करोड़ की पब्लिक सेक्टर यूनिट इसे कितने मिल गए 28 करोड़ रुपीज़ में। तो इसीलिए इसका भी क्रिटिसिज्म करा जाता है मेनी टाइम्स एट द टाइम ऑफ प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर डीवैल्यूड, मतलब उनकी एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू पर उनको बेच दिया जाता है। कारण आपको समझ में आ गया होगा, करप्शन इसका सबसे बड़ा कारण है। और तीसरा, इसका क्रिटिसिज्म इसलिए करा जाता है कि बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन देर इज कॉम्प्रोमाइज विद द गोल ऑफ सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट यदि काम कर रही है तो वो किसके लिए करेगी? सोशल वेलफेयर के लिए। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली जाएगी तो ये किसके लिए काम करेगी? प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट अब इसका मेन गोल हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मेन गोल क्या होता है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मेन गोल है सोशल वेलफेयर। और रिलायंस के जो पेट्रोल पंप्स हैं उनका मेन गोल क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यदि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को डे बाय डे यदि प्राइवेट सेक्टर के हाथों सेल आउट करती रही गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट विल हैव
टू कॉम्प्रोमाइज विद द गोल ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का गोल पीछे छूट जाएगा और लगातार पीछे छूट भी रहा है। एज वी आर डूइंग प्राइवेटाइजेशन वी आर गोइंग फार फार अवे विद गोल ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के गोल के साथ हम बहुत दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है सोशल वेलफेयर का जो मैक्सिमाइजेशन का जो गोल है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, क्योंकि अब पब्लिक सेक्टर यूनिट बन गई प्राइवेट सेक्टर यूनिट, तो उसका गोल क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। पहले गोल क्या था? सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर का गोल पीछे छूट जाएगा। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। तो ये आप समझ लीजिए। प्राइवेटाइजेशन यदि कभी भी पूछा जाता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, तो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। 2 स्टेप्स इसके लिए लिए गए, ऑब्जेक्टिव्स ये दोनों। उसके बाद 2 स्टेप्स वे टेकन फॉर इट। डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट 2 तरह से होता है, माइनॉरिटी सेल और स्ट्रैटेजिक सेल से। और क्रिटिसिज्म इस पॉलिसी के 3 पॉइंट्स पे हम करते हैं क्रिटिसिज्म, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है, प्राइवेटाइजेशन बहुत स्मॉल टॉपिक है। लिबरलाइजेशन वाज लार्जर एज कम्पेयर टू दीज 2 टॉपिक्स। इन 2 टॉपिक्स के कंपैरिजन में लार्जर था, इसीलिए एक अलग से एक पूरा वीडियो उसके लिए बनाया गया। ये दोनों एक साथ एक वीडियो में इसलिए कवर हो रहे हैं बिकॉज दीज 2 आर स्मॉलर टॉपिक्स। ग्लोबलाइजेशन, दिस इज द पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। याद होगा इसके लिए 3 स्टेप लिए गए लिबरलाइजेशन में। और फिर अभी में हमने पढ़ा प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन पहले वीडियो में, प्राइवेटाइजेशन अभी पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। इज दिस क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब एक कंट्री है, उस कंट्री को इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी कहा जाता है। मतलब इंडियन इकोनॉमी का यदि इंटरेक्शन या इंटीग्रेशन हो गया वर्ल्ड की इकोनॉमीज के साथ, मतलब इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटरेक्ट करने लगे, मतलब इफ़ देयर इज़ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ तक गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं, जा रही हैं, प्रोफेशनल्स आ रहे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आ जा रही है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब देयर इज़ नो हर्डल अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज आसानी से आ जा सके और कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सके, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सके, या प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, इफ़ दे आर एबल टू गो from one country to another country without any much problem, so this state is known as globalization. अब ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? इट इज़ द आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि लिबरलाइजेशन के लिए 5 रिफॉर्म्स करने पड़े, अपने आप नहीं हो गया। क्या क्या करना पड़ा? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म आपको बताया, फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म्स करना पड़ा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म या फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म करना पड़ा। एंड इन द सेम वे प्राइवेटाइजेशन के लिए भी 2 स्टेप गवर्नमेंट को लेना पड़ा, डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। बट ग्लोबलाइजेशन के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब लिबरलाइजेशन होता है और प्राइवेटाइजेशन होता है तो अपने आप ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन का एक और मतलब होता है बॉर्डरलेस वर्ल्ड, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक सामान आसानी से पहुंच सके विदाउट एनी हर्डल। जब मैंने आपको पढ़ाया था द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, तो मैंने बताया था कि जो फॉरेन ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड के इसमें 2 हर्डल्स होते हैं। क्या क्या? टैरिफ, और दूसरा मैंने आपको बताया था कोटा। टैरिफ और कोटा 2 हर्डल है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड का मतलब होता क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यदि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नेचुरली हो रहे हैं, इसका मतलब फ्री ट्रेड हो रहा है, आसानी से ट्रेड हो रहा है। लेकिन यदि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को कम करना हो तो गवर्नमेंट इन पे क्या इम्पोज कर देती है? टैरिफ। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हर्डल हो गया, मतलब फॉरेन ट्रेड में अब क्या हो गया? हर्डल लग गया। या गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कम करना चाहती हो तो इस पर क्या इम्पोज कर देगी?
कोटा लिमिट इम्पोज कर देगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड या जो फॉरेन ट्रेड होते हैं उनके हर्डल्स क्या होते हैं, उनके हर्डल्स होते हैं टैरिफ एंड कोटा, उनमें एक तरह से हर्डल का काम करते हैं। ओके, तो यदि टैरिफ और कोटा बहुत कंट्रीज या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इम्पोजिंग ह्यूज टैरिफ एंड इम्पोजिंग कोटा ऑल्सो, तो ग्लोबलाइजेशन का गोल नहीं फुलफिल हो पाएगा। इसीलिए 1991 के बाद डिफरेंट कंट्रीज हैव बिन रिड्यूसिंग द टैरिफ रेट्स एंड रिमूविंग द कोटा, तभी जो ग्लोबलाइजेशन का गोल है वो फुलफिल हो पाएगा। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्री फ्लो। यहाँ फ्री फ्लो का मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये नहीं इसका मतलब है। इसका मतलब है फ्लो हो रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू the period of 1950 to 1990 the flow is smoother। अब फ्लो थोड़ा स्मूथ हो गया उसके कंपैरिजन में। पहले टैरिफ कोटा बहुत ज़्यादा इम्पोज करके फ्लो को पूरी तरह से रोक दिया गया था, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वे आर नॉट अलाउड इन आवर कंट्री। लेकिन अब हमने क्या करा है कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैव बीन अलाउड, और फॉरेन प्रोफेशनल्स भी हमारे कंट्री में आ सकते हैं या हमारे प्रोफेशनल्स जा सकते हैं, बस उनको पासपोर्ट और वीज़ा लेना पड़ता है, या फॉरेन टेक्नोलॉजी भी हम ले सकते हैं या दे सकते हैं। अभी हर्डल्स कम हो गए हैं। तो इस तरह से हम किस एरा में पहुंच गए हैं, एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, अब नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है आउटसोर्सिंग पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको जानना है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ कंट्री विद वर्ल्ड इकोनॉमी। और इसके बाद पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा ग्लोब पे जितने भी कंट्रीज़ हैं सब एक दूसरे से अब क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सबका एक दूसरे से रिलेशन है, सोशल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, सब ने एक दूसरे से इस्टेब्लिश करें। अपने कंट्री के रिसोर्सेज दूसरे कंट्रीज़ को देते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के रिसोर्सेज अपने कंट्री में वो लेते रहते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एरा है। अब आउटसोर्सिंग के डेफिनेशन बताऊँ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इट इज़ द आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज़ द आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, एंड आउटसोर्सिंग इज़ द आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई प्रोडक्शन यूनिट है, ए एक प्रोडक्शन यूनिट है। तो ए में वेरियस सर्विसेज यूज़ करी जाती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज। कौन कौन सी सर्विसेज आप लेंगे ए में, यदि कोई फैक्ट्री है तो आप सर्विसेज लेंगे, लेबरर्स की सर्विसेज आप यूज़ करते हैं, या टेक्नीशियंस की सर्विसेज लेते हैं, या मैनेजर्स की सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विसेज इसमें लेंगे, इंजीनियर्स की। या कोई हॉस्पिटल है तो किसकी सर्विसेज लेंगे, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर्स की, नर्सेस की, टेक्नीशियंस की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। या कोई स्कूल है तो टीचर्स की, क्लर्क्स की, या सर्विसेज आप लेंगे टेक्नीशियंस की, मैकेनिक्स आएंगे उनकी भी सर्विस आपको लेना पड़ेगा, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स आएंगे बिल्डिंग बनाने के लिए। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं वो सर्विसेज यूज़ करती हैं किसकी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस, इन सब की सर्विसेज यूज़ करती हैं। यदि ये सर्विसेज विद इन कंट्री अवेलेबल हैं, यदि ये जो सर्विसेज यूज़ की जा रही हैं कंट्री के भीतर से ही यूज़ करी जा रही हैं इंटरनल सोर्सेज से, तो इसे बोलेंगे इन सोर्सिंग, इसको इन सोर्सिंग बोलेंगे। लेकिन यदि फॉरेन कंट्रीज से यदि ये सर्विसेज जो फैक्ट्रीज जो कंपनीज यूज़ कर रही हैं किसकी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, टीचर्स की, प्रोफेसर्स की, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, अदर टेक्नीशियंस, ये जो भी सर्विसेज हैं ये फॉरेन कंट्रीज से हायर करी जाती हैं, तो इसी को बोला जाता है आउटसोर्सिंग। एंड आउटसोर्सिंग क्यों पॉसिबल हुआ है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एरा है, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से कोई भी सर्विस खरीद सकती है या दूसरे कंट्री को कोई सर्विस बेच सकती है। in the same way as country can sell or purchase goods, in the same way countries now can sell or purchase the services of different professionals also। okay, तो आउटसोर्सिंग को क्या बोलते हैं, इन आउटसोर्सिंग कंपनी, कोई कंपनी है वो क्या करती है, हाईएस्ट, गलत यहाँ पे टाइप हो गया है, ये हाईएस्ट नहीं है, कंपनी हायर्स, HIRE, हायर का मतलब किराए पर लेना। अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज,
जो सर्विसेज कंपनी जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज से हायर करती है, विच वेर प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और विद इन कंट्री। जो सर्विसेज कंट्री के भीतर से कंपनी लेती थी, अब वो सर्विसेज फॉरेन कंट्रीज से ले रही है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आउटसोर्सिंग। इज दिस क्लियर? अब आप पूछेंगे कि एक कंट्री जो सर्विसेज कंट्री के भीतर से भी ले सकती है और कंट्री के बाहर से भी ले सकती है, तो फॉरेन कंट्री से क्यों ले रही है? क्योंकि अब मान लीजिए इंडिया में मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन लगाया, ई ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एक हॉस्पिटल मैंने खोला, तो इसमें मुझे क्या अपॉइंट करने पड़ेंगे? मुझे डॉक्टर्स, नर्सेस, इनको अपॉइंट करना पड़ेगा। यदि ओके इंडियन डॉक्टर्स पर मंथ सैलरी मांग रहे हैं सपोज 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ मांग रहे हैं, और बगल ही में कंट्री है बांग्लादेश, वहाँ के डॉक्टर्स केवल 10,000 रुपीज़ मांग रहे हैं, रुपीज़ 10,000। तो मैं कहाँ के डॉक्टर्स को हायर करूँगा? बांग्लादेश को, क्योंकि एज ऑर्गेनाइजेशन मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? जब इंडियन डॉक्टर्स को हायर नहीं करके मैं बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में चीपर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो ये जो सर्विसेज डॉक्टर की है, मैं पहले कहाँ से लेता था? इंडिया से, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है। दैट इज़ वाई नाउ गवर्नमेंट हैज़ अलाउड मी टू हायर द सर्विसेज ऑफ एनी प्रोफेशनल फ्रॉम फॉरेन कंट्री ऑल्सो। दैट इज़ वाई आई विल सर्च फॉर दैट कंट्री वेयर द सेम स्टैंडर्ड ऑफ डॉक्टर्स विच आर अवेलेबल इन इंडिया आर अवेलेबल एट लोअर कॉस्ट। मैं ऐसे कंट्री को फाइंड आउट करूँगा, ऐसे डेस्टिनेशन को वर्ल्ड में जहाँ पे उसी क्वालिटी के डॉक्टर्स जो इंडिया में हैं लेकिन वो सस्ते हैं, अवेलेबल हैं, वहाँ से मैं हायर करूँगा। तो आउटसोर्सिंग अब इसीलिए हो रही है क्योंकि डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एनी कंट्री, दे आर सर्चिंग वर्ल्ड वाइड and they are choosing those countries to hire the professionals where cheaper and good quality professionals are available. Is this clear? Now अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है कि आउटसोर्सिंग इंडिया के लिए अच्छा या खराब? तो आर्गुमेंट दोनों दिए जा सकते हैं कि आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ आउटसोर्सिंग। तो फेवर में दिया जाता है इंडिया में इसलिए बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड एफिशिएंट एज वेल एज चीपर प्रोफेशनल्स इन इंडिया। इंडिया में आपको पता होगा ना कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इंडिया के प्रोफेशनल्स हैं वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं। वो बहुत ही गुड क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, आईटी प्रोफेशनल्स इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग एवरी ईयर, ओके। और इंडिया में इनको जॉब नहीं मिल पा रही है, या गुड क्वालिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट अवेलेबल, ओके। नाउ इन फॉरेन कंट्रीज़, the companies which are working in foreign countries, in these countries, these doctors, chartered accountants in countries, those doctors and chartered accountants or other professionals which are available, they ask for higher salaries, ये ज़्यादा सैलरी मांगते हैं। और इंडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के हैं। मतलब फॉरेन कंट्रीज़ या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो प्रोफेशनल्स हैं, इंडियन प्रोफेशनल्स का भी जो लेवल है या उनका जो कॉम्पिटेंस का लेवल है, कॉम्पिटेंसी उनकी जो है वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के प्रोफेशनल्स हैं उनसे कम नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये कम सैलरी भी मांगते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉरेन प्रोफेशनल्स। इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंडियन प्रोफेशनल्स को क्या कर रही हैं? हायर कर रही हैं एवरी ईयर। क्योंकि इंडियन प्रोफेशनल्स न सिर्फ स्किल्ड एंड एफिशिएंट हैं, but these are cheaper also as compared to the professionals of developed countries. That is why the foreign companies जो है उनको हायर करें इन दिस वे। इंडिया के जो मोर एंड मोर प्रोफेशनल्स हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो कि इंडिया में जॉब नहीं मिल रही है, वो फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, वहाँ पे उनको जॉब मिल रही है। तो यदि इस पॉइंट को देखा जाए तो आउटसोर्सिंग इज़ इन फेवर ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बिकॉज इंडियन प्रोफेशनल्स which are equally efficient and equally skilled as the professionals of developed countries, but Indian professionals are asking for lower salary. That is why they are being hired by the companies of developed countries. In this way, more and more professionals of India who are unemployed in India, are those who are not having the better job opportunities in India, they are
accepting the jobs in foreign countries, and in this way outsourcing is somehow we can say that is able to solve the problem of unemployment. In this way we can say that it is favorable for India. Outsourcing is favorable for India because it is solving the problem of unemployment. But at the same time we can give an argument against it also, क्योंकि because of outsourcing there is the problem of brain drain. brain drain का मतलब brain मतलब द प्रोफेशनल्स अपनी सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज देने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अपने दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करा जाता है। अपनी जो इंटेलिजेंस है, जो उनका ब्रेन है, वो कहाँ चला जा रहा है? मतलब प्रोफेशनल्स बाहर जा रहे हैं। ड्रेन का मतलब बाहर जाना होता है ना, ड्रेनेज सिस्टम, घर से पानी बाहर निकल रहा है, तो ड्रेन मतलब आउटफ्लो। आउटफ्लो किसका हो रहा है? ब्रेन का। मतलब ब्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोफेशनल्स को रिप्रेजेंट करता है। ब्रेन प्रोफेशनल्स को, और ड्रेन का मतलब बाहर जाना। मतलब हमारे कंट्री के जो प्रोफेशनल्स हैं ये दूसरे कंट्री को चले जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ, दादा भाई नेहरू जी ने बोला था। जो इंडिया की ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडिया का जो एसेट था, इंडिया की जो वेल्थ, धन था, वो बाहर जा रहा था, ब्रिटेन की तरफ जा रहा है। अभी इंडिया का धन नहीं जा रहा है, इंडिया का मन बाहर जा रहा है। मन मतलब ब्रेन, मतलब प्रोफेशनल्स बाहर जा रहे हैं, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है। और कहा यह जाता है कि दोज प्रोफेशनल्स जो बाहर चले गए हैं, दे कुड हैव सर्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो प्रोफेशनल्स बाहर चले गए हैं ये दूसरे कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इफ़ दे वर्कड फॉर इंडिया दे वुड हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यदि इंडिया के बाहर नहीं गए होते तो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते। उसके बाद माई ओपिनियन का मतलब जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू यू थिंक आउटसोर्सिंग इज़ गुड फॉर इंडिया, तो आप लिखेंगे आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। उसके बाद आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं। अपना ओपिनियन क्या आप देंगे? बैलेंस्ड ओपिनियन देंगे। इन माय ओपिनियन आउटसोर्सिंग इज़ गुड फॉर इंडिया, आप कहेंगे आउटसोर्सिंग इंडिया के लिए अच्छा है। जो मैं भी मानता हूँ आप भी इसको एग्री करेंगे, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हमारे कंट्री से बाहर जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट अवेलेबल। यदि हमारे कंट्री में सारे प्रोफेशनल्स को जॉब मिल जाती, मिली हुई है ऑलरेडी, दे आर वर्किंग इन आवर कंट्री, और उसके बाद वो फॉरेन कंट्री हमारे कंट्री की जॉब्स को छोड़कर यदि चले जाते, तब ये हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न होता। बट वाई दे आर गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज? बिकॉज इन आर कंट्री सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स आर नॉट अवेलेबल। इफ़ दे डिड नॉट गो, जो फॉरेन प्रोफेशनल्स चले गए हैं, इफ़ दे डिड नॉट गो दे वुड बिकम अनएम्प्लॉयड इन आर कंट्री। यदि वो जाते नहीं तो हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयड हो जाते, क्योंकि इन आर कंट्री, इन इंडिया, सफिशिएंट नंबर ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट अवेलेबल टू यूटिलाइज। जितने भी प्रोफेशनल्स हर साल बहुत सारे लैक्स ऑफ प्रोफेशनल्स वी आर प्रोड्यूसिंग, बट लैक्स ऑफ गुड क्वालिटी जॉब्स वी आर नॉट क्रिएटिंग। तो यदि नहीं जाएंगे फॉरेन कंट्रीज़ में तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यदि फुल एम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में होता, उसके बावजूद ये लोग हमारे कंट्री से बाहर जाते, तब हम जरूर बोलते कि ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है। तो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इन आवर कंट्री देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। दीज ब्रेन्स आर ड्रेनिंग, वाई? बिकॉज if they did not drain, even they would not be utilized, their brains would not be utilized in our country. यदि वो ड्रेन नहीं भी करेंगे, नहीं भी जाएंगे, तो भी उनके ब्रेन्स का हमारे कंट्री में यूटिलाइजेशन होने वाला नहीं है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ओके, तो लिखा रहा है ना, सो इफ़ दे डू नॉट चूज द जॉब ऑफर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, मेनी ऑफ देम विल बी अनएम्प्लॉयड। यदि नहीं जाएंगे तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर आप बताएंगे क्योंकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगेंस्ट बताएंगे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अपना ओपिनियन बताएंगे क्योंकि ये वाला पूरा लिखेंगे फर्स्ट वाला, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है हमारे कंट्री में, इसीलिए मैं इसके फेवर में हूँ। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, जिसमें हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी मॉडल इम्प्लीमेंट किया गया, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या थे और नेगेटिव इफेक्ट्स। पॉजिटिव इफेक्ट्स समझना बड़ा आसान है, 8 पॉइंट्स मैंने दिया है, इसमें से 5 पॉइंट्स तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी मॉडल क्यों इम्प्लीमेंट किया गया था? इकोनॉमिक क्राइसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इकोनॉमिक क्राइसिस में कितनी प्रॉब्लम्स थी? 5 प्रॉब्लम्स। वो 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। पहला पॉजिटिव इफेक्ट यही है, मतलब पहले 5 पॉजिटिव इफेक्ट्स यही है। पहली प्रॉब्लम क्या थी? हाई फिजिकल डेफिसिट। तो पहला
पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल हो गया, कम हो गया है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, हाई बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हमारे कंट्री में रिड्यूस हो गया, कम हो गया है, ये वाला घाटा भी कम हो गया, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी का जो स्टॉक हमारे कंट्री में था वो कम था, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया है। और आपको याद होगा, इवन वी वे आर नॉट हैविंग इन ईयर 1991 दैट मच स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी which was able to import the goods and services for even 10 days। इतना भी हमारे पास नहीं था ताकि हम अगले 10 दिन का इंपोर्ट कर सके। और आज के टाइम पे वी आर हैविंग अ ह्यूज स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी दैट इज़ नियर अबाउट $475 बिलियन का स्टॉक हमारे पास फॉरेन करेंसीज का है। एक प्रॉब्लम आई थी इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन मोर और लेस हमारे कंट्री में क्या है, इट इज़ अंडर कंट्रोल। और इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की परफॉर्मेंस हमारे कंट्री में डे बाई डे क्या हुई है, इम्प्रूव हो गई है, इम्प्रूवमेंट है पहले से एज कम्पेयर टू द पीरियड ऑफ बिफोर 1991 there has been continuous improvement in the performance of public sector unit. Why? Because now foreign products are available in our country, as well as private sector is also allowed in those industries which were previously completely reserved for public sector. That is why now public sector is facing the competition from both Indian private sector products and foreign products, and because of this competition they are compelled to improve their परफॉर्मेंस। अब इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है वो इंडियन प्राइवेट सेक्टर से भी कंपटीशन है उनको, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को उन इंडस्ट्रीज़ में अलाउ कर दिया गया जो पहले केवल पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। और साथ ही साथ फॉरेन प्रोडक्ट्स भी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एरा है तो फॉरेन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को हम रोक नहीं सकते। 1991 में हमने करा था ना टैरिफ कोटा, इंपोर्ट और इंपोर्ट से हमने क्या करा था, हटा दिया था। तो फॉरेन प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में अवेलेबल है, तो इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को कंपटीशन फेस करना पड़ता है इंडियन प्राइवेट सेक्टर से और फॉरेन प्रोडक्शन यूनिट्स से भी। तो इस तरह से कंपटीशन के कारण उनकी परफॉर्मेंस में डे बाई डे इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक और फ़ायदा ये हुआ है कि इंक्रीज़ इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, FDI और FII। FII मतलब फॉरेनर्स हमारे कंट्री के शेयर मार्केट से शेयर खरीद रहे हैं, और FDI का मतलब फॉरेनर्स हमारे कंट्री में आ रहे हैं और फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो मोर एंड मोर फॉरेन कंपनीज आर कमिंग टू India and they are setting up the production units. So in this way there is increase in foreign direct investment और increase in the level of competition। competition का level हमारे country में बढ़ गया है, क्योंकि now our economy is open for foreign products। So because of availability of foreign products in our country, our industrialists, our production units are facing more and more competition। इंक्रीज़ इन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, इंडिया का फॉरेन ट्रेड भी बढ़ गया है, क्योंकि हमने क्या करा 1991 से पहले अपनी इकॉनमी को हमने क्लोज़ कर दिया था फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए। तो फॉरेन कंट्रीज़ ने भी अपनी इकॉनमी को हमारे प्रोडक्ट्स के लिए क्लोज़ कर दिया था। तो इस तरह से हमारे इंपोर्ट भी कम हो गए थे और एक्सपोर्ट भी कम हो गए थे। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों कम हो गए थे। 1991 में हमने अपनी इकॉनमी को फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए ओपन कर दिया, तो फॉरेन कंट्रीज़ ने अपनी इकॉनमी को हमारे प्रोडक्ट्स के लिए ओपन कर दिया है। तो अब हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ गए, मतलब हम दूसरे कंट्रीज़ को भी ज़्यादा सामान बेच पा रहे हैं, और हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़ गए, हम दूसरे कंट्री से भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे कंट्री में फॉरेन ट्रेड बढ़ गया है। तो दीज वेयर द पॉजिटिव इफेक्ट्स। 5 में से 8 तो इकोनॉमिक क्राइसिस याद कर सकते हैं। जो इकोनॉमिक क्राइसिस आपने लिखा था उसका उल्टा लिख देंगे, हाई फिजिकल डेफिसिट, रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट, हाई बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, रिडक्शन, shortage of foreign exchange reserve, increase in foreign exchange reserve, high inflation, control over inflation, poor performance of public sector units, improvement in the performance of public sector units। और ये 3 एक्स्ट्रा आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमको ये पढ़ना है नेगेटिव इम्पैक्ट्स। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हुए हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में LPG मॉडल हमारे कंट्री में लाया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ बीन अफेक्टेड एडवर्सली। इसने एग्रीकल्चर सेक्टर को एडवर्सली अफेक्ट करा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिड्यूस कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया। अब आप सोचेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद अपने एक्सपेंडिचर को क्यों रिड्यूस करा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना था, फिजिकल डेफिसिट को कम करना था। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम।
मतलब यदि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और इनकम कम, तो फिजिकल डेफिसिट को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, डिसइन्वेस्टमेंट, ताकि लॉस बेयरिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच के पैसा कमाया जा सके। और एक्सपेंडिचर को कम करना था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 सेक्टर्स में एक्सपेंडिचर कर रही थी। कौन कौन सा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब सेकेंडरी सेक्टर, और सर्विस सेक्टर मतलब टर्सरी सेक्टर। इसमें वीकेस्ट सेक्टर, सबसे कमज़ोर सेक्टर कौन सा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यदि आपको किसी का एक्सप्लॉयटेशन करना है, तो सबसे पहले किसका करेंगे, पावरफुल का करेंगे या वीकेस्ट का करेंगे, जो मोस्ट पावरफुल होगा या जो लीस्ट पावरफुल होगा, जो लीस्ट पावरफुल सेक्टर कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक्सपेंडिचर किस में कम कर दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर में नहीं करा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं बड़े बड़े, जो पूरे कंट्री को चलाते हैं। वहाँ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये हो जाते सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, तो गवर्नमेंट ये बियर नहीं कर सकती थी। और तीसरे सेक्टर में प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स भी हाईली इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड होते हैं, ये इनको पूरी हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस होती है। तो गवर्नमेंट यहाँ भी एक्सपेंडिचर कम करना बियर नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये दोनों यदि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते तो गवर्नमेंट का सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता। गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान था, एक्सपेंडिचर कम करना था। तो किस सेक्टर को गवर्नमेंट ने चूज़ करा, एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। जो किसान है वो अपनी बात, उनकी बात गवर्नमेंट कभी नहीं सुनती है। इसीलिए जो लीस्ट डेवलप्ड सेक्टर हमारी कंट्री में इवन एट प्रेजेंट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस सेक्टर में अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर में, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल डेफिसिट। और एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब खर्च किया। और अपने एक्सपेंडिचर को घटाने के लिए कौन सा सेक्टर चूज़ करा, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपेंडिचर कम करा, इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस क्या हो गई, डे बाई डे खराब होती गई। तीसरा, एडवर्स इफेक्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी इन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। क्यों, बिकॉज ऑफ चीपर इम्पोर्ट, बिकॉज नाउ आवर इकोनॉमी इज ओपन, दैट इज वाई इन आवर कंट्री डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एज वेल एज फॉरेन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो फॉरेन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं, फॉरेन डेवलप्ड कंट्री से, जहाँ लाइक स्पेन, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका। तो इन कंट्रीज़ में के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में अच्छी क्वालिटी के होते हैं, चीपर भी होते हैं। इसीलिए इंडिया में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड से ज़्यादा डिमांड होती है फॉरेन प्रोडक्ट्स का। टॉय इंडस्ट्री को देख सकते हैं, जब भी हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं या मोबाइल देख ले सकते हैं, हम इंडियन मोबाइल कम ख़रीदते हैं, या बैटरी ख़रीदने जाते हैं मोबाइल की तो हम चाइनीज़ बैटरी खरीदते हैं, चाइनीज़ टॉय खरीदते हैं। तो आप देख सकते हैं चीपर इंपोर्ट्स अवेलेबल हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मार्केट में भरे पड़े हैं। तो इंडियन क्यों अब भरे पड़े हैं, क्योंकि हम रोक नहीं सकते, क्योंकि अब हम किस एरा में आ गए हैं, ग्लोबलाइजेशन के। और हमने कौन सा मॉडल फॉलो करा है डेवलपमेंट का, एलपीजी मॉडल। इसमें हमने अपनी इकॉनमी को ओपन कर दिया है। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट जो हमारे कंट्री में आते हैं हम उनको रोक नहीं सकते, तो चाइना अपने प्रोडक्ट हमारे कंट्री में भेजता है। इवन अमेरिकन प्रोडक्ट्स या ब्रिटिश प्रोडक्ट्स या जापानीज़ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज आर better and cheaper, and that is why the demand of Indian products has been decreasing day by day. And because of this, because of lack of demand, they have to face many problems. उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, और इसीलिए उनका परफॉर्मेंस डे बाई डे क्या हो रहा है, उसमें डिक्लाइन हो रहा है। अगली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एलपीजी मॉडल जो हमने फॉलो करा, या जिसे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम हमको कौन सी है, जॉबलेस ग्रोथ। हमारे कंट्री में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में अपनी इकॉनमी को हमने ओपन कर दिया, तो जो टेक्निक आई हमारे कंट्री में, फॉरेन टेक्निक्स हमारे कंट्री में अवेलेबल हो गई, क्योंकि इकॉनमी ओपन है। तो इंडियन प्रोड्यूसर्स इंडियन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, फॉरेन टेक्निक्स इंडियन टेक्निक यूज़ करेंगे। तो इंडियन टेक्निक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है। उसमें लेबर क्या ज़्यादा चाहिए होता है और उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। और फॉरेन जो टेक्निक्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स होती हैं। इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम होती है, इनमें जो लेबर चाहिए होता है वो कम चाहिए होता है। सो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन व्हाट इंडियन प्रोड्यूसर्स आर डूइंग, दे आर रिप्लेसिंग इंडियन टेक्निक बाय फॉरेन टेक्निक्स।
इंडियन टेक्निक की जगह पे फॉरेन टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं जो कि कैपिटल इंटेंसिव है। तो इन टेक्निक्स को चलाने के लिए कम लेबरर्स चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबरर्स को जॉब से निकाल रहे हैं। तो जॉब्स क्या हो रही है, कम हो रही हैं, जॉब लेस जॉब्स। इनके कारण प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है क्योंकि जो फॉरेन टेक्निक्स हैं वो हाईली प्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, इसीलिए हमारे कंट्री में प्रोडक्शन इससे बढ़ रहा है। और प्रोडक्शन बढ़ने के कारण हमारे कंट्री का क्या बढ़ रहा है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कंट्री का बढ़ रहा है। और टोटल प्रोडक्शन बढ़ने से हमारे कंट्री का ग्रोथ भी क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से हमारे कंट्री में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रोथ और डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जॉब्स क्या होती जा रही, कम होती जा रही हैं। इस तरह के ग्रोथ को, इस तरह के डेवलपमेंट को, जिसमें कि डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्शन तो बढ़ता है लेकिन जॉब्स कम होती जाती है बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इज दैट काइंड ऑफ ग्रोथ मॉडल इन विच प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज increases because of use of highly productive capital intensive technique, but at the same time the number of job opportunities decrease because of use of capital intensive technique। तो इसीलिए इसके कारण जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, इसीलिए प्रॉब्लम कौन सी आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। ओके, और लास्ट जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म या सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, compromise with the goal of social welfare, क्योंकि public sector units, sorry, because under this new economic reforms public sector units are being sold to private sector। प्राइवेटाइजेशन आपको याद होगा सेकेंड स्टेप लिया गया इसमें। तो यहाँ पे गोल क्या रहता था, पहले सोशल वेलफेयर, अब क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट। तो हमारा सोशल वेलफेयर का गोल नीचे की तरफ जा रहा है, प्रॉफिट का गोल कंट्री में ऊपर की तरफ आ रहा है। प्रॉफिट के लिए मोर एंड मोर प्रोडक्शन यूनिट्स आर वर्किंग फॉर प्रॉफिट एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स वर्किंग फॉर सोशल वेलफेयर इज़ डिक्रीजिंग डे बाई डे। तो इस गोल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट करा आज लिबरलाइजेशन, पहले ही कंप्लीट करा था, आज मैंने कंप्लीट करा प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर ग्लोबलाइजेशन में मैंने कुछ और टॉपिक आपको बताया जैसे आउटसोर्सिंग, और लास्ट में मैंने बताया न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, वीडियो नंबर 3, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा briefly about World Trade Organization, demonetization and GST।